Today we are going to start chapter number 11, and chapter number 11 is electrostatics. Electrostatics is defined as the study of charges at rest. Because when a charge moves, flow of charge is called current, and the study of current is called current electricity. So here we will be studying charges only at rest. Now the first thing is, what is a charge? We cannot define charge properly. Rather, we can define it like it is the intrinsic property due to which charged bodies or bodies, they attract each other or they repel each other. Now, as we know that atom is electrically neutral. If we study the structure of atom, there are three types of particle inside the atom. Number one, electrons, which are revolving around the nucleus, and electrons, they are labeled as negatively charged particles. Number two, protons, which are residing inside the nucleus, and they are labeled as positively charged particles. And number three, neutrons, which are labeled as neutral particles. There is no charge on neutrons. Now, as atom is electrically neutral, the charge on an electron is equal in magnitude to the charge on a proton. The SI unit of charge is coulomb. Now the charge on an electron is called electronic charge, and the magnitude of electronic charge is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Now, as the charge on electron is negative, so we label electronic charge as minus 1.6 10 power minus 19 coulomb, like this. And the charge on a proton is positive, so we label that charge as charge on a proton is equal to plus 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. Now, as we know that atom is electrically neutral, therefore the number of electrons revolving around the nucleus, they are always equal to the number of protons residing inside the nucleus. And the positive charge and the negative charge, it add up to 0. And that is the reason the atom is electrically neutral. Now the thing is, we cannot remove a proton easily from an atom because proton is residing inside the nucleus. But it is easy to remove an electron from an atom. So what will happen if an electron is removed from an atom? The magnitude of the negative charge will decrease. The magnitude of the positive charge remain unchanged. Therefore, atom as a whole become positively charged. And similarly, if we add electrons to an atom, then the magnitude of the negative charge, total negative charge, will increase. The magnitude of the positive charge remain unchanged, and therefore the atom becomes as a whole negatively charged. So it means that when
when we are going to define a charge, it is the excess of electrons on an atom, or it is the deficiency of electron on an atom, because we cannot remove positive charge from an atom. So roughly we can define charge as the excess of electron or the deficiency of electron. As I have told you, the SI unit of charge is coulomb, and it is represented by this symbol C. Now, the next thing which we are going to discuss is quantization of charge. A famous scientist, Millikan, he performed so many experiments to determine the charge on an oil drop. And the conclusion of the results of his experiments was that charge he determined was quantized. That is, charge on any charged object can be written as, if the charge on an object is q coulomb, it can be written as n times E, where n is an integer and it represents 1, 2, 3, 4, 5 and so on, and E represents the electronic charge, which is 1.6 into 10 power minus 19 coulomb. ये बिल्कुल ऐसे है कि अगर हम ये कहें कि एक क्लास में 20 स्टूडेंट्स हैं या एक क्लास में 15 स्टूडेंट्स हैं, तो स्टूडेंट्स का जो नंबर है ये क्वांटाइज्ड है, फिक्स्ड है, डिस्क्रीट है. वी कैन नॉट से कि जी एक क्लास में 20.5 स्टूडेंट्स हैं या 15.7 स्टूडेंट्स हैं. सिमिलरली जब हम ये कहते हैं कि चार्ज ऑन एनी चार्ज ऑब्जेक्ट इज क्वांटाइज्ड, इट मीन्स दैट कि किसी भी चार्ज बॉडी पे जो चार्ज होगा दैट विल बी 1 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 2 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 3 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज, 4 टाइम इलेक्ट्रॉनिक चार्ज और इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक चार्ज. So from here, if I ask you, okay, what is the number of electrons या number of electronic charge in 1 coulomb, तो देखें इस फॉर्मूले में Q is equal to 1 coulomb पुट करें and you will get the number of electrons या number of electronic charge in 1 coulomb. तो देखें Q is equal to n times E, n is equal to Q divided by E. Q की वैल्यू है 1 coulomb, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज है 1.6 10 power minus 19 coulomb. Coulomb will cancel out and we will get a number 6.25 into 10 power 18. So this is the number of electronic charge in 1 coulomb charge. Now as we know that there are two types of charges, positive charges and negative charges. Now there are some basic laws. Like charges, they repel each other. Two positive charges will repel each other, or two negative charges, they will repel each other. And unlike charges, they attract each other. Positive and negative charge, they will always attract each other. Now, what is the magnitude
of the attraction or repulsion between the charges, that was investigated by Coulomb. Coulomb, he used a setup which was called torsion balance, and he determined the magnitude of the force of attraction or repulsion between two point charges. Now the first thing is, okay, what is a point charge? Now whenever we use the word point, that means a point body has no dimension. So if there are two charges, one is Q1 and the other is Q2, and the distance between them is very large as compared to their own size, then these two charges, they are assumed as point charges. आप ऐसे समझ लें कि आप जो है इस्लामाबाद में बैठे हुए और आपका फ्रेंड जो है वो पेशावर में बैठा हुआ है. अब अगर आप अपनी साइज़ या अपने डायमेंशन को देखते हैं तो नॉर्मल जो हाइट होती है वो तकरीबन 5 फीट 6 इंचेस से लेके 6 फीट तक एक नॉर्मल इंसान की हाइट होती है. अब अगर एक बंदा सैटेलाइट में बैठकर आप दोनों को देख रहा है तो देखिए आपका जो अपना डायमेंशन है वो 1.5 मीटर या 1.7 मीटर या 1.8 मीटर है, लेकिन आपके और आपके दोस्त के दरमियान जो डिस्टेंस है पेशावर इस्लामाबाद का, तो अगर हम उसको रफली भी कंसिडर कर लें कि 200 किलोमीटर है तो 200,000 मीटर्स हो जाता है. तो 200,000 मीटर्स मीन्स 2 लाख मीटर. तो फिर जो बंदा आपको सैटेलाइट से देख रहा है, आप दोनों उसको ऐसे नज़र आएंगे जैसे पॉइंट्स, डायमेंशनलेस ऑब्जेक्ट्स, क्योंकि आपके दरमियान डिस्टेंस बहुत ज़्यादा है. इसी तरह अगर हम ये कहते हैं कि दो चार्जेस हैं और उनके दरमियान डिस्टेंस इतना ज़्यादा है कि उनका साइज़ हम इग्नोर कर सकते हैं, तो हम कहते हैं कि दीज चार्जेस आर कॉल्ड पॉइंट चार्जेस. So Coulomb जो था, he investigated the force of attraction or repulsion, the magnitude of the force of attraction and repulsion between the point charges, and the apparatus he used, that apparatus was called torsion balance. Now what is Coulomb's law? According to Coulomb's law, if we have 2 point charges Q1, Q2 separated by a distance r which is very large as compared to their size. अब आप कहेंगे कि जी लार्ज डिस्टेंस क्या होता है, या तो इसके लिए मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल दे देता हूँ कि देखिए अगर हम एटम का साइज़ कंसिडर करें तो रफली हम ये कह सकते हैं कि हमारा जो एटम है इसका डायमीटर 10 पावर -10 मीटर है, और अगर हम इसके अंदर न्यूक्लियस को कंसिडर करें तो अप्रॉक्सीमेटली हम ये कह सकते हैं कि इसका डायमीटर 10 पावर -15 मीटर है. यानी एटम का साइज़ 1 एंगस्ट्रॉम है विच इज़ 10 पावर -10 मीटर्स, और न्यूक्लियस का साइज 10 पावर -15 मीटर है विच इज़ 1 फर्मी. तो आप ये कंसिडर कर सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन का साइज़ कितना होगा या प्रोटॉन का साइज़ कितना होगा, और जो हम जिसको हम पॉइंट चार्जेस कहते हैं उसका साइज़ कितना होगा. तो इस साइज़ के मुकाबले में अगर हम कहते हैं कि 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस मिलीमीटर्स में भी है तो वो डिस्टेंस बहुत लार्ज है एज कंपेयर टू द डायमेंशन ऑफ द चार्जेस. तो दैट इज़ द रीज़न कि मैं ये कह रहा हूँ कि 2 पॉइंट चार्जेस आर देयर and the distance between them is r, and r is very large as compared to their size. Now, according to Coulomb's law,
these two charges, if they are like charges, they will repel each other. If they are unlike charges, they will attract each other. The magnitude of the force of attraction or repulsion is F, and that is directly proportional to the product of the magnitude of the two charges. And also, the force of attraction or repulsion is inversely proportional to the square of the distance between the two charges. यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस. मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स जो कि अट्रैक्टिव है या रिपल्सिव है, इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम. इसलिए इस लॉ को हम कहते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ. नाउ एक प्रोपोर्शनैलिटी ये हो गई, एक प्रोपोर्शनैलिटी ये हो गई. Another assumption is these two charges they are kept in air or vacuum. इनके दरमियान जो मीडियम है या वो एयर है या वो वैक्यूम है. अब हम ये कहते हैं कि इफ वी कंबाइन दीज टू प्रोपोर्शनैलिटीज 1 and 2, तो हमारे पास ये आता है कि द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन is equal to a constant of proportionality Q1 Q2 divided by R square. This constant of proportionality is normally written as K Q1 Q2 divided by R square. Equation number 3. Now this K is given by 1 divided by 4 pi epsilon naught. ये जो सिंबल है, इस सिंबल को हम कहते हैं एप्सिलॉन. और एप्सिलॉन इसके साथ अगर हम नीचे यहाँ एक छोटा सा ज़ीरो लगा दें तो ये बन जाता है एप्सिलॉन नॉट. एंड दिस रिप्रेजेंट्स permittivity of a medium of air or vacuum. Permittivity is a property which affects the magnitude of force of attraction or repulsion. इससे ज़्यादा हमें इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. परमिटिविटी की जो वैल्यू है एयर या वैक्यूम, अब यहाँ मैंने दोनों लिखा है एयर और वैक्यूम. द रीज़न इज़ कि जो एयर की परमिटिविटी है और जो वैक्यूम की परमिटिविटी है वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल है. अगर आप इसका रेशो ले लें तो वो अप्रॉक्सीमेटली 1 आता है. द परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ एयर या परमिटिविटी ऑफ एयर डिवाइडेड बाय परमिटिविटी ऑफ वैक्यूम. तो इसका रेशो 1 आता है. इसलिए हम ये कहते हैं अप्रॉक्सीमेटली कि इन दोनों की परमिटिविटी इक्वल है. और इसके लिए हम एक ही सिंबल यूज़ करते हैं विच इज़ एप्सिलॉन नॉट. इसकी जो वैल्यू है वो है 8.85 इंटू 10 पावर माइनस 12 न्यूटन sorry 8.85 into 10 power minus 12 coulomb square per Newton per meter square. So this is the value of the permittivity of air or vacuum. अब अगर मैं इसी वैल्यू को यहाँ पुट करूँ तो मेरे पास k की वैल्यू आती है 1/4 पाई इंटू 8.85 10 पावर माइनस 12. और यहाँ से मेरे पास k की वैल्यू आएगी अप्रॉक्सीमेटली 9 इंटू 10 पावर 9
न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। अब आप कहेंगे कि सर ये यूनिट्स जो है ये आपने कहाँ से डिराइव किए? देखें, अगर मैं इस इक्वेशन में एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू को पुट कर दूं, देखें F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। नाउ रीअरेंज दिस इक्वेशन, एप्सिलॉन नॉट को एक तरफ रहने दें, बाकी सारी चीज़ों को राइट साइड पे ले जाएं, तो देखें ये आपके पास बनता है 1/4 पाई Q1 Q2 डिवाइडेड बाय FR स्क्वायर। Q1 ये चार्ज है, इसका यूनिट है कूलम। Q2 ये भी चार्ज है, इसका यूनिट है कूलम, तो ये हो जाएगा कूलम स्क्वायर। फोर्स न्यूटन स्क्वायर, सॉरी न्यूटन। R स्क्वायर डिस्टेंस है तो मीटर स्क्वायर। तो देखिए कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये वाला यूनिट आ गया। सो एप्सिलॉन नॉट का यूनिट है कूलम स्क्वायर पर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, SI यूनिट। सिमिलरली अगर मैं आपको कहूं कि जी K का यूनिट यहां से निकालें, तो देखें ये बिल्कुल एक सिंपल रिलेशन बन जाता है कि K जो है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसलिए K का यूनिट 1/यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट होगा। आप इसको ऐसे भी डिराइव कर सकते हैं, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। देखें कि आप कहते हैं F इज इक्वल टू K Q1 Q2 डिवाइडेड बाय R स्क्वायर। So K is equal to FR square divided by Q1 Q2। ये देखें न्यूटन, R का यूनिट मीटर, तो ये हो जाएगा मीटर स्क्वायर, कूलम इंटू कूलम पर कूलम स्क्वायर, तो ये बन जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। I think now it will be clear to you कि एप्सिलॉन नॉट यानी परमिटिविटी का यूनिट हम कैसे डिराइव करते हैं, और जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी है K, इसका यूनिट जो है ये हम इस इक्वेशन से कैसे डिराइव करते हैं। अब अगर मैं आपको ये कहूँ कि मुझे इसकी डायमेंशन बताएं, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, व्हाट इज़ द डायमेंशन ऑफ K, तो देखिए डायमेंशन ऑफ K, K का यूनिट है मेरे पास, ऐसा यूनिट है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखें जी, न्यूटन फोर्स का यूनिट है और फोर्स की डायमेंशन हमारे पास कहाँ से आती है? F इज इक्वल टू ma से। यहाँ से फोर्स की डायमेंशन हमारे पास आती है, फोर्स का यूनिट आता है kg मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो वहाँ से जब आप डायमेंशन निकालते हैं तो वो आती है mL/t-2। ये न्यूटन की डायमेंशन आ गई। मीटर स्क्वायर ये डिस्टेंस है, तो इसकी डायमेंशन आ जाएगी L स्क्वायर। कूलम, अगर आपको याद हो तो फर्स्ट ईयर में आपको हमने ये बताया था कि 7 बेस यूनिट्स होते हैं और उन यूनिट्स के डायमेंशंस को हम जो है उसी को कंसिडर करके किसी भी क्वांटिटी का डायमेंशन निकालते हैं। तो कूलम जो है इट इज़ नॉट अ बेस यूनिट, बेस यूनिट करंट है, तो हम कूलम को इन टर्म्स ऑफ करंट रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो देखें नॉर्मली हमारे पास एक डेफिनेशन होती है कि करंट इज़ फ्लो ऑफ चार्ज Q/T। सो आई कैन राइट Q इज इक्वल टू IT। ये अगले चैप्टर्स में आप पढ़ भी लेंगे। तो कूलम को मैं लिख सकता हूँ एम्पेयर, करंट का यूनिट है एम्पेयर और टाइम का यूनिट है सेकंड। सो आई कैन राइट इट एज एम्पेयर इनटू सेकंड। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है C-2, तो देखें अगर मैं इसको स्क्वायर कर दूँ तो ये बन जाएगा एम्पेयर स्क्वायर सेकंड स्क्वायर।
और अगर मैं इसको माइनस का साइन लगाता हूँ तो इस पे भी माइनस का साइन आ जाएगा। और अगर मैं इसकी डायमेंशन निकालता हूँ तो डायमेंशन इसकी बन जाएगी, एम्पेयर को तो हम ऐसे ही लिखते हैं और टाइम की जगह हम t यूज़ करते हैं, तो ये हो जाएगा t माइनस 2a माइनस 2। सो दिस इज़ द डायमेंशन ऑफ c माइनस 2। अब आप इसको कंबाइन करके लिख सकते हैं एंड यू कैन डिटरमिन द डायमेंशन ऑफ k। तो देखिए न्यूटन, k की डायमेंशन क्या आ जाएगी, न्यूटन ml माइनस 2 मीटर स्क्वायर l स्क्वायर, c माइनस 2 a माइनस 2 t माइनस 2। तो डायमेंशन ऑफ k विल बी m l क्यूब, l और l स्क्वायर को मल्टीप्लाई कर दें, t माइनस 2 t माइनस 2 t माइनस 4 और a माइनस 2। सो दिस इज द डायमेंशन ऑफ k। अब अगर आपको मैं कह दूं कि व्हाट इज द डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस और वैक्यूम, तो देखिए हमें पता है कि k इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, तो इसकी डायमेंशंस का साइन चेंज कर दें, प्लस को माइनस कर दें, माइनस को प्लस कर दें, तो आपके पास डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ जाता है। तो देखिए डायमेंशन ऑफ एप्सिलॉन नॉट आ जाएगा, इन सब के साइंस को चेंज कर दें तो आ जाएगा m माइनस 1 l माइनस 3 a2 t4। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज, देखिए हम इस कूलम्स लॉ के एक्सप्रेशन को ऐसे लिखते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q1 q2 divided by r square, where q1 is a charge, point charge, q2 is a point charge and the distance between them is r। और यहाँ से हम ये भी कहते हैं कि ये एक इनवर्स स्क्वायर लॉ है, फोर्स वेरीज एज 1/r स्क्वायर। इसका क्या मतलब है, इसका ये मतलब है कि अगर दो पॉइंट चार्जेस के दरमियान डिस्टेंस को हम डबल कर दें तो क्या होगा। अगर हम डिस्टेंस को डबल करेंगे, r की जगह मैं 2r लगाता हूँ तो ये बन जाएगा 1/4r स्क्वायर, यानी ये फोर्स जो है ये 1/4 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। अगर इस डिस्टेंस को मैं 3 टाइम्स कर देता हूँ तो फिर ये हो जाएगा 1/3r होल स्क्वायर विच इज़ 1/9r स्क्वायर, यानी ये फोर्स 1/9 टाइम्स रिड्यूस हो जाएगी। तो इसलिए अगर मैं इस फोर्स का एक ग्राफ बनाऊं, यहाँ देखें, यहाँ y एक्सिस पे मैं फोर्स को प्लॉट करता हूँ, x एक्सिस पे मैं डिस्टेंस को प्लॉट करता हूँ, तो ये ग्राफ कुछ इस तरह होगा। ये जो डिस्टेंस है, फ़र्ज़ करें ये r है और यहाँ फोर्स का मैग्नीट्यूड जो है वो f है। अब अगर इस डिस्टेंस को बढ़ाकर मैं 2r पे ले जाता हूँ तो ये फोर्स कम होकर f/4 हो जाएगी, यानी 1/4 टाइम कम हो जाएगी। और अगर इस डिस्टेंस को मैं और ज़्यादा कर दूँ, 3r कर दूँ, तो फिर ये फोर्स f/9 हो जाएगी। और इसी तरह अगर इस डिस्टेंस को मैं 4 टाइम्स कर दूँगा तो फिर ये फोर्स 1/16 टाइम्स कम हो जाएगी। चूँकि ये ग्राफ इस तरह का है, इसलिए हम इसको ये कहते हैं कि ये ग्राफ जो है ये शो कर रहा है इनवर्स स्क्वायर रिलेशन। ओके, अगर इसी ग्राफ को मैं थोड़ा सा चेंज करके प्लॉट करूं और मैं ये कह दूं कि जी आई एम प्लॉटिंग फोर्स वर्सेस आर स्क्वायर, नॉट वर्सेस आर, तो फिर यही ग्राफ थोड़ा सा लेस स्टीपर हो जाएगा, यानी ये तो बहुत तेज़ी के साथ कम हो रहा है,
फिर ये थोड़ा सा इसमें ऐसा चेंज आ जाएगा, और बल्कि इसको मैं थोड़ा सा और ज़्यादा स्ट्रेट करके शो कर सकता हूँ कि इसकी जो डिक्रीज़ है वो इसके मुकाबले में कम हो जाएगी। अगर मैं दोनों को एक ग्राफ पे प्लॉट करके बताऊं तो देखें, इफ़ दिस शोज F वर्सेस R, then this can show F versus R square. So this is the difference. Now the next thing is the vector form of Coulomb's law. Vector form of Coulomb's law. Obviously फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, और हमें पता होना चाहिए कि इसकी डायरेक्शन क्या है, तो इसलिए कूलम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में भी लिखते हैं। और वेक्टर फॉर्म में जब हम इसको लिखते हैं तो वी कैन राइट इट एज F12 which is the force exerted on charge 1 by charge 2. This represents what? Force on charge Q1 by Q2. Q2 Q1 पे कितनी फोर्स लगा रहा है, that is represented by F12, and I can write it as K Q1 Q2 divided by R square R12 unit vector, where R12 is a unit vector which represents the direction of the force. अब अगर आप बुक में देखें तो वहाँ आपको मिलेगा कि जी इट इज़ ए वेक्टर फ्रॉम Q1 टू Q2 या इट इज़ ए वेक्टर फ्रॉम Q2 टू Q1। तो पहली बात तो ये है कि अगर ये दोनों चार्जेस लाइक चार्जेस हैं, दोनों पॉजिटिव हैं या दोनों नेगेटिव हैं, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और जब ये रिपेल करेंगे तो फोर्स ऑन चार्ज Q1 बाय चार्ज Q2 रिपल्शन है, तो ये उसको पुश करेगा, रिपेल करेगा, मेरी तरफ मत आओ, तो वो ये डायरेक्शन होगी। और अगर ये अनलाइक चार्जेस है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, तो ये इसको अट्रैक्ट करेगा, तो इस फोर्स की डायरेक्शन फिर इसकी तरफ होगी, अपनी तरफ पुल करेगा, अट्रैक्ट करेगा। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इज अ पुल, फोर्स ऑफ रिपल्शन इज अ पुश। तो पुश की डायरेक्शन अवे फ्रॉम Q2 होगी और पुल की डायरेक्शन टूवर्ड्स Q2 होगी। तो इसलिए मैं ये नहीं कह सकता कि ये वेक्टर Q1 से Q2 की तरफ है या Q2 से Q1 की तरफ है। आप ये कह सकते हैं कि दिस इज अ यूनिट वेक्टर विच रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ द फोर्स ऑफ Q2 ऑन Q1। अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो उसकी तरफ है, अगर रिपेल कर रहा है तो उससे अवे है। सो व्हाट इज R12? R12 is a unit vector representing the direction of F12. And what is F12? Force on Q1 by Q2. Similarly, I can also write F21. And what is F21? It is force on Q2 by Q1. Q1 Q2 पर कितनी फोर्स लगा रहा है, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं F21 से। And what will be F21? F21 vector will be K Q1 Q2 divided by R square R21 यूनिट वेक्टर। इस तरफ आपने ये वाला यूनिट वेक्टर लगा दिया। एंड व्हाट इज दिस? दिस रिप्रेजेंट्स द डायरेक्शन ऑफ, इट इज अ यूनिट वेक्टर रिप्रेजेंटिंग द डायरेक्शन ऑफ
F21। और जैसे मैंने आपको बताया है कि अगर अट्रैक्ट कर रहा है तो ये डायरेक्शन फिर Q1 की तरफ होगी, क्योंकि Q2 को वो अट्रैक्ट कर रहा है, और अगर वो रिपेल कर रहा है तो इट विल बी अ पुश, तो अवे फ्रॉम इट। तो आई कैन नॉट से इट हैज़ अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इट कैन हैव बोथ डायरेक्शन, इट डिपेंड्स अपॉन लाइक चार्जेस हैं या अनलाइक चार्जेस हैं। तो ये थोड़ी सी बुक में ये चीज़ें ऐसी थोड़ी सी कंफ्यूजिंग दी हुई हैं, तो काइंडली आप उसको यहाँ से क्लियर कर सकते हैं, ठीक? ओके, नाउ द नेक्स्ट थिंग इज के अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ, action reaction forces are equal in magnitude, opposite in direction, act on two different objects and they are of the same nature. अब अगर हम यहाँ ये कंसिडर करते हैं कि यहाँ ये दो चार्जेस हैं, एक Q1 है दूसरा Q2 है, अगर दोनों लाइक चार्जेस हैं दोनों रिपेल करेंगे, अगर अनलाइक चार्जेस हैं दोनों अट्रैक्ट करेंगे। दोनों की फोर्सेस कितनी है मैग्नीट्यूड वाइज देखें, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, K Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, ये इसका मैग्नीट्यूड है। R12 क्या है, F12 की डायरेक्शन है। R21 क्या है, F21 की डायरेक्शन है। अगर Q1 Q2 को अट्रैक्ट कर रहा है तो दोनों फोर्सेस इक्वल हैं, दोनों फोर्सेस अपोजिट हैं, दोनों फोर्सेस अलग अलग चार्जेस पर एक्ट कर रही हैं, एक Q1 पर एक्ट कर रही है, एक Q2 पर एक्ट कर रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि F12 is equal to minus F21. These two forces are action reaction forces. Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा तो Q2 भी Q1 को अट्रैक्ट करेगा, और अगर रिपेल करेगा तो वो भी उसको रिपेल करेगा। These forces are equal in magnitude, opposite in direction and they are of the same nature, यानी कि ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस हैं। अब थोड़ा सा हम इसको एलेबोरेट कर देते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर ये Q1 है, ये Q2 है, फर्ज करें ये भी पॉजिटिव चार्ज है, ये भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये इसको रिपेल करेगा। जब ये इसको रिपेल करेगा तो ये होगा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू चार्ज 1 F21, तो ये इसको रिपेल करेगा तो इसकी ये डायरेक्शन होगी F12, फोर्स ऑन चार्ज 1 एक्सर्टेड बाय चार्ज Q2। और अगर ये अनलाइक चार्जेस हैं तो देखें Q1 Q2 को अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स इस तरफ होगी F21, और Q2 इसको अट्रैक्ट करेगा तो ये फोर्स इस तरफ होगी F12। दोनों केसेस में आप देख सकते हैं कि फोर्सेस जो हैं ये अपोजिट है। रिपल्सिव फोर्सेस को आप ऐसे शो करते हैं और अट्रैक्टिव फोर्सेस को आप ऐसे शो करते हैं। लास्ट पॉइंट जो आज मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता हूं, कूलम्स लॉ में आज के लेक्चर में, ज़रा यहाँ देखिए, ये एक्सप्रेशन है कूलम्स लॉ का, F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर। अब अगर आप एक चीज़ नोट करें कि ये चार्ज है Q1, मैं इससे इधर डिस्टेंस r पे चला जाऊं या इधर डिस्टेंस r पे चला जाऊं या इस तरफ चला जाऊं डिस्टेंस r पे, या नीचे चला जाऊं डिस्टेंस r पे, या आपकी तरफ आ जाऊं, ठीक है, आउट ऑफ द बोर्ड डिस्टेंस r पे, या इनटू द बोर्ड डिस्टेंस r पे, तो ये डिस्टेंस तो इट रिमेन अनचेंज्ड। और मैं Q2 को यहाँ रख दूँ या यहाँ रख दूँ या यहाँ रख दूँ, द मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो क्या अगर मैं हर पॉइंट
R पे कंसिडर कर लूँ Q1 से और Q2 को वहाँ रखूँ तो ये एक स्फेरिकल सरफेस बन जाती है। तो इसकी जो ज्योमेट्री है वो एक स्फेयर है और स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। तो अगर हम सोचें द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फेयर इज 4 पाई r स्क्वायर, यानी ये एक स्फेयर टाइप बन जाएगा जिसका रेडियस r होगा। और अगर आप इस इक्वेशन में देखें तो देखिए ये 4 पाई लिखा हुआ है और ये r स्क्वायर लिखा हुआ है। इसका मतलब है इट हैज़ टू डू विद द ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। सो दैट इज़ इट। ये मेरा आज का लास्ट का टॉपिक का लास्ट पॉइंट था कि 4 पाई r स्क्वायर का जो फैक्टर है इट इज़ प्रेजेंट जस्ट बिकॉज ऑफ द ज्योमेट्री ऑफ द प्रॉब्लम। थैंक यू वेरी मच। कल इंशाल्लाह इससे आगे चलेंगे और फिर हम ये देखेंगे कि अगर 2 पॉइंट चार्जेस के दरमियान मीडियम जो है हम उसको चेंज कर दें, इंसुलेटर रख दें, तो क्या ये फोर्स कम होगी, ज़्यादा होगी, क्या इफ़ेक्ट होगा और इसका इफ़ेक्ट और कितनी चीज़ों पे हो सकता है। थैंक यू वेरी मच।